عزت مند چاروں کا مشمارہ اوشتا چپت بدا وحشت کرنے تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں واجہ محمد ایوب جمالی بلوچ صاحب. بڑی دلچسپ مرحلے میں گفتگو داخل ہو چکی ہے. جب ہم ان سے آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے تو انہوں نے 3 باتیں جو ہے وہ ہمیں کہیں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں، بلوچ تو سندھ کے جو ہے مالک ہیں، بلکہ بلوچ ہی ہیں جنہوں نے سندھی زبان کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ بلکہ بلوچ ہی ہیں جو سندھ کے محافظ ہیں. چلے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے سر یہ تینوں باتیں جو آپ نے کہیں ان کو کیسے آپ واضح کریں گے؟ میں پہلے آپ یہ بات کروں کہ لٹرری پوائنٹ آف ویو سے، ادبی لحاظ سے جو خدمات ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کے ہیں سندھی لینگویج کے لیے، کسی اور کیا نام آپ نہیں لے سکتے اس کے ساتھ. تو اسی سے ثابت یہ ہے عبداللطیف بھٹائی صاحب کے اوپر ریسرچ جو ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے کی ہے شاید کسی اور نے نہیں. بہت بڑا نام. کسی نے اب یہ تو ہے ادبی لحاظ. اگر آپ آگے بڑھیں گے کہ سندھ کے لیے بلوچ ہمیشہ جان لینے کے لیے بھی حاضر ہوتا ہے. جب بلایا جاتا ہے کہ بلوچ سب سے آگے جان دینے. میں پہلے بات کروں اس کی ہوشو شیدی کی. انتہائی مستند. شیدی مکرانی بلوچ ہے اور اس کا نام ابھی تک بلاول بھٹو بھی کہہ چکا ہے کہ مرسوم سندھ دیسو. تو یہ بات بلوچ نے کی ہے، کسی اور نے نہیں. تیسری بات جو موجودہ دور میں جب جان کی قربانی لینی پڑتی ہے تو بلایا وہ کون؟ قادر مکسی کو بلایا جاتا کہ وہ اپنی جان ہتھیلی میں ڈال اور آنکھوں میں ملا کے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہوش محمد شیدی کا جملہ کہا. تو اس کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھائیے. اسی لیے بول رہا ہوں کہ بلوچوں نے سندھ کی خدمت ہر لحاظ سے کی ہے، ادبی لینگویج سے بھی کی ہے، آپ کو بتا چکا ہوں میں، مگر حفاظت کے لحاظ سے بھی ہوشو شیدی نے جو نعرہ لگایا وہ لگایا مرسو سندھ نہ دیسوں. مرسو سندھ نہ دیسوں یہ لینگویج جو ہے نا وہ سندھی لینگویج نہیں ہے، یہ بلوچی لینگویج ہے. کیوں کہ ہمارے بلوچ سرائکی بھی بات بولتے ہیں، سرائکی بھی بولتے ہیں. یہ جنوبی پنجاب کے جو بیلٹ ہے ہاں وہ سرائکی بھی بولتے ہیں. اس وجہ سے اسی نعرے کو بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا کہ مرسو سندھ نہ دیسوں. کہ ہم جب سندھ کے لیے اس حد تک جاتے ہیں کہ ادبی لحاظ سے بھی ہم فرسٹ کیٹیگری میں ہیں، حفاظت کے لحاظ سے بھی ہم فرسٹ ہیں، ہم آگی صف میں ہیں. حفاظت کے لحاظ سے بھی ہم آگی صف میں ہیں، ادبی لحاظ سے بھی ہم پہلی صف میں ہیں. تو کیوں نہ ہم سندھ اور بلوچ آپس میں پرانی غلطیاں چھوڑ کے ایک کیوں نہ ہو جائیں. بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی. یہاں پر میں جو ہے نا اب چونکہ ہم پروگرام کے بالکل آخر میں پہنچے ہوئے ہیں، میں آپ سے یہ ضرور آپ کا جو ہے نا وہ اس پہ پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ جو بلوچ کلچر کو آگے بڑھانے کے لیے اور زبان کی خدمت کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے جو وش نیوز 2 مارچ کو جو کلچر ڈے کا سلسلہ وش نیوز نے شروع کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں اس کے بارے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سندھی ادبی لحاظ سے سندھی ادب والوں کو بھی اپنے ساتھ بلایا جائے، ان کے بھی خیالات کو اپنے خیالات کے ساتھ لے کے ملایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ اپنے قلم کی طاقت سے بلوچ اور سندھی کو پھر یک لیول پہ لانے کی. زبردست. یعنی ہم اپنے کلچر ڈے کو منائیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ سندھ والوں کو بھی شامل کریں اور ان کے ادیبوں کو خصوصاً شامل کریں، لائیں، تاکہ جو ہے وہ ہماری زبان اور ہمارے کلچر کی ترویج میں اہم کردار ادا کر سکیں. اور میں آپ سے یہ اسی سے جو ہے نا وہ ملتا جلتا ایک سوال ضرور پوچھوں گا کہ زبان اور کلچر کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیا ہمارا متحد ہو کر آگے بڑھنا جو ہے وہ اس کے لیے سود مند ہے؟ سود مند جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں طاقتور ہے. سود مند کچھ بھی نہیں ہوتا، طاقتور ہے. جب سندھی اور بلوچ یک ہیں
मैं तीसरी बार कहूंगा कराची सिंध है, और कराची में बलोचों का आधा हिस्सा है। कराची ओरिजिनली बलोच रहायश पजीर है, और लिहाजा जब कराची में आधा बलोचों का है तो सिंधी और बलोच आपस में मिलकर ताकत क्यों ना बनाए। ये दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो ये एक ताकत बन जाएगी, और इनका इस ताकत की वजह से दोनों को एक फायदा होगा। ताकत की वजह से हम दुनिया से लड़ सकते। तो ये सर, मैं फिर बलोच नौजवान की तरफ आऊंगा। आप बलोच नौजवान को कैसे मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे? किस तरह जो है ना वो उनको आगे बढ़ाने का, जो है ना वो बढ़ने का हौसला देंगे, या उन कोई तजावीज़ देंगे कि वो आगे बढ़ें और अपना एक किरदार, एक भरपूर किरदार अपनी जो है वो कम्युनिटी के लिए अदा करें? सवाए तालीम के कोई और कुछ नहीं है कि बलोचों को उभारा जाए, सवाए तालीम। इस जमाने में जब हम जवान थे, उस जमाने में सिंधी के ऊपर इल्जाम था अपने घर से निकलते ही नहीं है, यानी होम सिक हैं किस जमाने में। मगर भुट्टो साहब जब आया, उसने एक शऊर दिया और उसने तालीम पर जोर दिया, और जब तालीम जोर दिया तो इस वक्त आपको सबसे फर्स्ट बड़े से बड़ा वकील जो मिलेगा ना, वो भी सिंधी बलोच मिलेगा। कौन? के है के विरोही सिंधी बलोच, बराबर ना। और सबसे बड़े से बड़ा डॉक्टर आपको कौन मिलेगा? मेमन मिलेगा। सबसे बड़ा जज कौन मिलेगा? जमाली लेवल का मिलेगा, चाहे वो जमाली बलोच हो, सिंधी हो, मगर ही जमाली। आपको तालीम तालीम की पॉइंट ऑफ व्यू, तालीम की वजह से ही तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एडवोकेट भी आपको बड़ा मिलेगा, ये भुट्टो साहब की वजह से। बलोच साहब, कल्चर की तरवीज में शोरा और फनकारों के किरदार को कैसे देखते हैं आप? मेरे भाई, सिंधी में सबसे बड़ा शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने सबसे बलोची किरदार को टॉप लेवल पे रखा, जिसके लिए मैं आपको एक छोटा सा शेर सुनाता हूँ। आपको ये पता है कि जत एक बलोच है, नो नो, जतोई बलोच है, मगर जत जत एक और कबीला है, लाइक जमाली, लाइक मगसी, लाइक। तो शाह साहब ने उस किरदार को कैसे लिया? पुन्नू बलोच था, जब पुन्नू से अपनी वाइफ, बीवी, ससुई, भाइयों ने लेके गए तो पीछे क्या हुआ कि शाह साहब ने कहा कि पुन्नल लाए पेरे पंध कंदिया, पेरन पंध छड़ियो, गोडन साण गस दियास, गोडन गसन छड़ियो, सीने भर सुरन दिया, मिलिया मिल दियास, मत घोरी जान जतन। तो मतलब ये हुआ कि मिले तो मिले, नहीं तो ये जान जो है ना बलोचों पर कुर्बान। इससे ज्यादा क्या हो? ये सिद्दीक का बलोच के साथ इल्हाक कि गोरी जान जत। ओके, और फिर उसके साथ बलोचों में एक और जबरदस्त मौसीकार बताऊं, जलाल चांडियो, वो सिंध का माए नवाज, एक यकतारा चपड़ी पे गाने वाला कौन है? जलाल चांडियो है, कोई और नहीं, बलोच। बलोच फैज मोहम्मद तो बजाते खुद बलोच है, उसके ऊपर तो मैं क्या बोलूं, तो बलोच है। तो उसने बलोच के किरदार को, बलोच के कल्चर को, बलोच के ढंग को ऐसा 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 किया है कि वो जब गाता है बलोच लगता है, बराबर ना। और उसके साथ साथ अनवर बलोच। हाँ बिल्कुल, आज के दौर के वो बहुत बड़े फनकार हैं, बिल्कुल। वहाँ उनका नाम लिए बगैर आज के दौर के फनकारों को जो है बयान ही नहीं कर सकते। बहुत बड़े फनकार। रोजमर्रा के कामों में, दिनों में इसका इसका कोई नेमल बदल हमको नजर अभी तक नहीं आया। बिल्कुल, आप बहुत खूबसूरत बात कही है इन्होंने कि जो कल्चर की तरवीज में जो फनकार और शोरा हजरात जो है ना वो किरदार अदा करते हैं, वो बड़ा कमाल होता है। मैं इसके साथ ऐड करता चलूँ, पंजाब में पीटीवी पे जब फैज़ मोहम्मद बलोच का गाना आया करता था, तो हमारे घर के, हमारा एक बहुत बड़ा, वहाँ पर सारे जो है ना बच्चे वो नाचना शुरू कर देते थे उस बलोची रिदम के साथ। और फिर
फैज़ मोहम्मद बलोच को सिर्फ बलोच नहीं जानते थे, पंजाबी भी जानते थे कि यार वो फैज़ मोहम्मद बलोच एक आता है, बड़ा जो है ना वो झूम के और नाच के गाना गाता है, बड़ा बेहतरीन गुफ्तगू जो है ना वो चल रही है। और लास्ट में हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मरले की तरफ हैं, और मैं चाहूँगा कि मैं अपने जो है ना वो नामवर शख्सियत से, इस मेहमान इज़्ज़तदार शख्सियत से एक पैगाम भी ले लूँ, क्योंकि इनकी ज़िंदगी अमल से भरपूर है। इनकी सारी ज़िंदगी जो है उसके अंदर जो है वो चैलेंजेस का सामना रहा, मसाइल को इन्होंने फेस किया, इन्होंने ये जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर थे। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है वो खुद प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, व्हेन यू आर नॉट ऑफ सोल्यूशन यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन थे। ठीक है, तो ये हमें बताएंगे, ये हमें मैसेज देंगे कि हमें क्या करना है, कोई एक ऐसा काम जो हम करें और हम जो है वो तामीर और तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जी सर, आपका आखिरी पैगाम। हम बलोच इस वक्त तालीम के लिहाज से बहुत पीछे हैं। मैं खास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा कराची के बलोच मींस लिहाड़ी वालों को कि वो तालीम में इतना आगे बढ़ें जितना इंटीरियर सिंध व खाना बिशाना तालीम में मुकाबला कर रहे हैं। हर लिहाज से हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में इंटीरियर के बलोच जो है ना वो साफ साफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और जमाली साहब का जो पैगाम आप तक पहुंचा, वाकई वो बहुत बड़ा पैगाम है। अगर तामीर और तरक्की को देखा जाए तो वो एजुकेशन के अंदर छुपी हुई है। जितनी भी कौमें ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं उन्होंने दुनिया में उतनी ज़्यादा तरक्की की है। अगर कौमों के हवाले से बात नहीं भी करते, कराची के इलाकों को ले लो, जिन इलाकों में तालीम ज़्यादा है उन इलाकों ने ज़्यादा तरक्की की है। लोगों के अंदर शऊर है, लोगों को अपने हुकूक का पता है। और जिन इलाकों में तालीम कम है वो तामीर और तरक्की के जो है ना वो फल से उस तरह मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकते जिस तरह के दूसरे होते हैं। बहुत खूबसूरत एक पैगाम। आज की जो शख्सियत ख्वाजा मोहम्मद अयूब जमाली साहब, बड़ी कसीरुल जौहर शख्सियत, बड़ी पुरमगज़ गुफ्तगू आज जो मैंने सुनी है वो मैंने शायद ही इससे पहले कभी सुनी हो। जैसे उन्होंने बहुत सारी मिसालें देकर बताया कि बलोच इस खित्ते का नहायत जो है वो अहम कबीला और अहम कौम है, उसकी अहमियत से इनकार कभी भी नहीं हो सकता। गुले चारों का मर्चगे में प्रोग्राम में बाद ख़त्म बुवती मेहमानदार मुसव्वर बलोचा शुमा इजाज़त विदियत, और इंशाअल्लाह दे में प्रोग्राम गो नोके मेहमान शुमेद माँ सारी बेंत। थैंक यू जमाली साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का, बहुत ज़्यादा आज। थैंक यू, थैंक यू।